اندھیری رات میں جب کہ آسمان بالکل صاف ہو تو آپ کو جنوب سے شمال کی جانب تاروں سے بھرا ہوا ایک سفید دھوئیں کی طرح پٹا نظر آئے گا۔ یہی ہماری کہکشاں ہے۔ اسے اعلیٰ کہکشاں نام سے جانا جاتا ہے۔ بے شمار ستارے اور ان کے سیاروں کے مجموعے کو کہکشاں کہتے ہیں۔ ہمارا نظام شمسی جس کہکشاں میں واقع ہے اسے آکاش گنگا کہتے ہیں۔ ہماری آکاش گنگا کہکشاں کے جس مجموعے میں ہے اس مجموعے کو مقامی کہکشاؤں کا مجموعہ کہتے ہیں۔ کائنات میں ایسی کئی کہکشائیں ہیں۔ آکاش گنگا میں ہمارے سورج سے چھوٹے، اسی طرح جسامت میں ہزاروں گنا بڑے ستارے، ستاروں کے جھرمٹ، سحابیہ، ہوا کے بادل، دھوئیں کے بادل، مردہ ستارے، نئے وجود میں آنے والے ستارے جیسے کئی فلکی اجسام شامل ہیں۔ ہماری آکاش گنگا کے قریب دوسری کہکشاں دیویانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کہکشاؤں کی قسمیں: نمبر 1، غیر منظم، نامکمل پیچ دار، بیضوی، پیچ دار۔ ایڈون ہبل نامی سائنسدان نے ہماری آکاش گنگا کے باہر کئی دوسری کہکشاؤں کے پائے جانے کا انکشاف کیا۔ ناسا نامی امریکی ادارے نے 1990 میں ہبل نامی دوربین زمین کے مدار میں چھوڑی۔ اس سے ستاروں کا پتہ لگانا، تصویریں لینا اور طیف حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ ستارے: رات میں ہمیں صاف آسمان پر چمکتے ہوئے ہزاروں ستارے نظر آتے ہیں جو ہماری آکاش گنگا کے ہی حصے ہیں۔ ہمیں نظر آنے والے ستاروں میں سے کئی ستارے بہت زیادہ روشن تو کئی مدھم ہوتے ہیں۔ نیلے، سفید، پیلے، سرخ ایسے مختلف رنگوں کے ستارے ہم آسمان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خود کی چمک تبدیل کرنے والے ستارے بھی آسمان میں موجود ہیں۔ خاص طور پر گرد کے ذرات اور ہوا کے بڑے سحابیہ کے مقام پر ستارے وجود میں آتے ہیں۔ عام طور پر ستاروں کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 3500 درجہ سیلسیس سے 50,000 درجہ سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کے مطابق ستارے اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں۔ ستاروں کی قسمیں: سورج جیسے ستارے، نیر۔ ان ستاروں کی جسامت سورج سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہوتا ہے۔ یہ ستارے سرخ نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، مثلاً الفا کنتورس، شورا وغیرہ۔ دیو نما سرخ ستارے: ان کا درجہ حرارت 3000 درجہ سیلسیس سے 4000 درجہ سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے، لیکن ان کی روشنی کی شدت سورج سے 100 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان ستاروں کا قطر سورج کا 10 سے 100 گنا کے درمیان اور رنگ سرخ ہوتا ہے۔ عظیم الجثہ: یہ دیونما سرخ ستاروں سے بڑے اور روشن ہوتے ہیں۔ ان کا درجہ حرارت 3000 درجہ سیلسیس سے 4000 درجہ سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے، لیکن ان کا قطر سورج سے سینکڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جڑواں ستارے: آسمان پر نصف سے زائد تعداد جڑواں ستاروں کی ہے، یعنی دو ستارے ایک دوسرے کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات 3 یا 4 ستارے بھی ایک دوسرے کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ متغیر ستارے: ان ستاروں کی روشنی اور شکل قائم نہیں رہتی، ان میں مسلسل سکڑاؤ اور پھیلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ پھیلنے پر ستارہ کم توانائی خارج کرتا ہے، اس وقت اس کی چمک کم ہوتی ہے، برخلاف اس کے جب وہ سکڑتے ہیں تو ان کی سطح کا درجہ حرارت بڑھتا ہے اور ستارہ زیادہ توانائی خارج کرتا ہے، اس لیے وہ زیادہ روشن نظر آتا ہے، مثلاً دمدار ستارہ۔ بتائیے تو بھلا نظام شمسی کے مختلف اجزاء کون سے ہیں؟ ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ نظام شمسی میں کل کتنے سیارے ہیں؟ سیارہ مریخ اور مشتری کے درمیان کیا ہے؟ عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ یہ اندرونی سیارے ہیں، جبکہ مشتری، یورینس اور نیپچون بیرونی سیارے ہیں۔ بیرونی سیاروں کے اطراف ہلکا ہوتا ہے، تمام اندرونی سیاروں کا غلاف سخت ہوتا ہے۔ بیرونی سیاروں کا غلاف ہوا کی مانند ہوتا ہے۔
निज़ाम शमसी। निज़ाम शमसी में सूरज, सैयारे, ज़ैली सैयारे, दुमदार सितारे और शहाब साकिब शामिल हैं। निज़ाम शमसी में अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मिश्तरी और ज़हल आसानी से दिखाई देते हैं। सूरज। निज़ाम शमसी के मरकज़ में मौजूद पीले रंग का सितारा सूरज है। सूरज की सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 6000 दर्जा सेल्सियस होता है। सूरज की जसामत इतनी बड़ी है कि उसमें हमारी ज़मीन की जसामत के 13 लाख सैयारे आसानी से समा सकते हैं। सूरज की शकली क़ुव्वत की वजह से ही निज़ाम शमसी के अजसाम में फल्की उसके अतराफ़ गर्दिश करते हैं। सूरज का कुत्र तकरीबन 13,92,000 किलोमीटर है। सूरज अपनी महवरी गर्दिश के दौरान आकाश गंगा के मरकज़ के अतराफ़ निज़ाम शमसी के साथ गर्दिश करता है। अतारुद। ये सूरज का करीब तरीन सैयारा है। जब यह सूरज से दूर होता है तो ज़मीन से इसे सिर्फ सुबह और शाम में देखा जा सकता है। इस सैयारे पर शहाब साकिब की वजह से पैदा होने वाले ज्वालामुखी के दहाने की तरह गड्ढे नज़र आते हैं। ये सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार सैयारा है। ज़ोहरा। ये निज़ाम शमसी का सबसे रोशन सैयारा है। आम तौर पर यह तुलूए आफ्ताब से कबल मशरिक़ में और गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब में नज़र आता है। ज़ोहरा ख़ुद के गिर्द मशरिक़ से मगरिब की जानिब गर्दिश करता है। यह सबसे गर्म सैयारा है। ज़मीन। यह निज़ाम शमसी का तीसरा सैयारा है। ज़मीन के अलावा किसी और सैयारे पर ज़िंदगी नहीं है। ज़मीन ख़ुद एक मकनातीस होने की वजह से उसके अतराफ़ एक मकनातीसी मैदान है। इस मकनातीसी मैदान की वजह से ही सूरज से आने वाली मुज़िर शुआएँ कुतबैन की जानिब मुड़ जाती हैं। मरीख। ये निज़ाम शमसी का चौथा सैयारा है। मरीख की मिट्टी में लोहे की मौजूदगी की वजह से इसका रंग सुर्खी माइल नज़र आता है, इसलिए इसे सुर्ख सैयारा भी कहते हैं। मरीख पर निज़ाम शमसी का सबसे ऊंचा और लंबा पहाड़ ओलम्स मांस मौजूद है। मिश्तरी। ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। इसमें 1397 कुर्रे अर्ज़ आसानी से समा सकते हैं। जसामत में इतना बड़ा होने के बावजूद ये अपने महवर पर तेज़ी से घूमता है। इस पर हमेशा शदीद तूफ़ान आते हैं, इसलिए इस सैयारे को तूफ़ान ज़दा सैयारा भी कहते हैं। ज़हल। ये निज़ाम शमसी का छठा सैयारा है। मिश्तरी के बाद ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। ज़हल एक मुनफरिद खुसूसियत वाला सैयारा है क्योंकि इसके अतराफ़ एक हल्का है। इसकी कमियत ज़मीन से 15 गुना ज़्यादा होने के बावजूद इसकी कसाफत इंतहाई कम है। ऐसा समझिए कि एक बड़े समंदर में अगर इसे डाल दिया जाए तो वो आसानी से तैरता रहेगा। यूरेनस। ये निज़ाम शमसी का 7वां सैयारा है। इस सैयारे को बग़ैर दूरबीन के देखा नहीं जा सकता। ये अपने महवर पर बहुत ज़्यादा झुका होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये लुढ़कने हुए हरकत कर रहा है। नेपच्यून। ये निज़ाम शमसी का 8वां सैयारा है। नेपच्यून एक ही मौसम में तकरीबन 41 बरस तक रहता है। इस सैयारे पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। ज़ैली सैयारे। आज़ादाना तौर पर सूरज के अतराफ़ गर्दिश ना करते हुए किसी मखसूस सैयारे के अतराफ़ गर्दिश करने वाले फल्की अजसाम को ज़ैली सैयारे कहते हैं। सैयारों की तरह ज़ैली सैयारे भी अपने महवर पर गर्दिश करते हैं। चाँद ज़मीन का ज़ैली सैयारा है। इस पर आब व हवा नहीं है। अतारुद और ज़ोहरा के सिवा दूसरे तमाम सैयारों के ज़ैली सैयारे हैं। चाँद का महवरी और मदारी गर्दिश का वक्फ़ा 27 दिन 3 घंटे है। सैयारचे। निज़ाम शमसी के सैयारों के बनने के दौरान सैयारे बनने में नाकाम छोटी छोटी चट्टानों के सैयारचे कहते हैं। मरीख और मिश्तरी के दरमियान फल्की अजसाम का एक पट्टा बन गया है। तमाम सैयारचे
सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। बोने सैयारे सूरज के अतराफ घूमने वाले छोटी जसामत के फल्की अजसाम बोने सैयारे कहलाते हैं। प्लूटो जैसे फल्की अजसाम बोने सैयारे कहलाते हैं। प्लूटो को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 248 साल दरकार होते हैं और महवरी गर्दिश का वक्फा 6 दिन 38 घंटे होता है। दुमदार सितारा यानी निज़ाम शमसी के बाहर से सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाला कुर्रवी शहाबा है। दुमदार सितारा धूल और बर्फ़ के ज़र्रात से मिलकर बनता है और यह हमारे निज़ाम शमसी का एक हिस्सा है। कदीम ज़माने से दुमदार सितारे के ज़मीन के करीब आने को मनहूस समझा जाता रहा है। जब यह सूरज से दूर होता है तो एक नुक्ते की तरह नज़र आता है। जब यह सूरज के करीब आता है तो सूरज की हरारत और कम फासले की वजह से आसानी से देखा जा सकता है। दुमदार सितारा मुंजमद माए और गर्द के ज़र्रात से बना होता है। सूरज की हरारत की वजह से दुमदार सितारा माए गैस में तब्दील होता है। ये गैसें सूरज की मुखालिफ सिमत में फेंकी जाती हैं, इसलिए कुछ दुमदार सितारे लंबे परों जैसे नज़र आते हैं। दुमदार सितारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। इनका मदार बड़ा बैज़वी होने की वजह से वो कम या ज़्यादा अरसे के बाद आसमान में नज़र आते हैं। क्या आप जानते हैं हेली का दुमदार सितारा 1910 के बाद दोबारा 1986 में दिखाई दिया। हेली के दुमदार सितारे का मरकज़ी हिस्सा 16 किलोमीटर लंबा और 7.5 किलोमीटर चौड़ा है। हेली के दुमदार सितारे को सूरज के अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए 76 साल लगते हैं। उससे कबल यह दुमदार सितारा 1986 में नज़र आया। शहाब साकिब हमें कभी कभी आसमान से तारा टूट कर गिरता हुआ नज़र आता है, उसको शहाब साकिब कहते हैं। कई दफ़ा शहाब साकिब यानी ज़ैली सैयारों के पट्टे से गिरने वाली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, लेकिन जो छोटे टुकड़े ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं तो फ़िज़ाई कुर्रे से रगड़ खाने की वजह से पूरी तरह जल जाते हैं। उन्हें शहाब साकिब कहते हैं। बाज़ वक्त शहाब साकिब पूरी तरह ना जलकर ज़मीन की सतह पर आकर गिरते हैं। उन्हें शहाबी पत्थर या शहाबा कहते हैं। महाराष्ट्र की झील में लोनार झील ऐसे ही एक शहाबा के गिरने से बनी है। ज़मीन की तरह दूसरे फल्की अजसाम पर भी शहाब साकिब और शहाबे गिरते रहते हैं।